Good morning, students. My name is Suhaswara, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. Now, in the last lectures, we can learn about the globalizations. Okay, so in the last lectures, we can see that the disasters trend. Looking at the last 10 years, in these sections, we can learn about there are the different type of disasters and the how many people will be affected. Here you can see that the natural hazards, the 3070 751 hazards will be done in the last 10 years of the natural hazards, and approximately 24% 84% sorry, there are 84% people will be affected. Then after the 2 billions number of people are affected by the nature, and this one is also the number of monies will be affected that. Yes, so you can see that the natural hazards which have the weather related trigger with the flood storms, then along the according for the almost two-thirds of the incidents. Then after we can see that the graph, so this one is the biological, chemical, then hydrological and others. You can see that the last 19th to 2005 the different hazards. After you can see that after the 1960, yes, this one, the vehicles and the atmospheric effect will be most ofly changed. It means the climate will be changed and the most of the hazards will be increases. यानी कि 1960 के बाद जब व्हीकल आम जनरली यूज़ होने लगे तब एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होने लगी, और उसकी वजह से ज़्यादातर बायोलॉजिकल है या वेदर रिलेटेड यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हमने नेचुरल हज़ार्ड्स यानी कि डिज़ास्टर्स है वो इंक्रीज़ हुए। जैसे कि व्हीकल यूज़ करने से पॉल्यूशंस होता है, एंड पॉल्यूशंस की वजह से द एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट होने लगी। देन आफ्टर हम ज़मीन खोद के ऑयल निकालने लगे, उसकी वजह से अर्थक्वेक होने लगे। सो देर आर द लॉट ऑफ द इफेक्ट विल बी इंक्रीज आफ्टर the comparison graph for the 2008 to 2017 and the 1908 to 2017। 1998 से 2007 तक एंड 2008 से लेके 2017 तक अभी जो मैंने बताया उसमें कौन कौन से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्लूड था वो 2010 तक इतना रेशियो था, यानी कि 230 जैसा था, और वो बढ़ के 385 होने लगा। सो दिस आर दी disaster trends. Then after we can see that the volcano, around the 15 to 17 volcanoes of the years, you can see the different type of years and the volcanoes and the number of people will be affected. Yes, in the 1991 approximately the 1 crore people will be affected, that sorry 10 crore people. So these are the affections. Now the global warming, you can here also see that after the 1916, yes, this one, you can see that the global warming is also increases, and these are the big effect of the weathers. देन ह्यूमन ट्रेंड्स, अब इंसान से जो डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि सम ट्रेंड्स अमोंग द ह्यूमंस
populations added in the increase in the risk. Then after the one of these is urbanization. जैसे कि जब अर्बनाइजेशन आया तब ओवर द 15 ऑफ द इंक्रीज इन दी 1950, 1950 में जो था अर्बन एरिया वो बढ़ के 29% बढ़ गया इन द अप टू नाउ डे. So this crowd space and the especially to the major earthquake, floods and hurricanes. So the world properties continues to be the major issues, reducing the capacity and the effects. So these are the human made trends. Then after the emergency risk management for the health, then after the country capacities, then after here you can also see that the factor affect the capacity includes weak health and the disaster management systems. Then after the lack of the assessment to the resources and the know to how the change and the continuity insecurity due to the conflict. So these are the factors for the capacity. Then after the climate change, हम जानते हैं कि क्लाइमेट डिफरेंट जगह पे अलग अलग अफेक्ट होता है. जैसे कि हम कच्छ की बात करें तो वहाँ पे ड्रट यानी कि सूखा ज़्यादा पड़ता है. और दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ कि पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी में बारिश के टाइम पे बहुत पानी आ जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज फॉर द different climate change. So the climate change can increase the disaster risk in the variety of the ways by alternating the frequency and the intensity of the hazards. So these are the climate change. Then climate change will be drive the disaster risk included. You can and frequency extreme precipitations. Then after the decreasing the residencies and others. Now the causes and of the natural and the human causes. Then after the mitigations to the climate change, adoptions of the protected agricultures. So these are the learned in the last lectures. Now today's topic is, now start with the new chapters, the disaster management cycles and the framework of the disaster management cycles. Now the today's topic is introductions of the disaster management cycles and the paradigm shift in the disaster management. Now start with this. In some of we know that what is the disasters and disaster management. So basically the disaster dimensions. So basically we know that the definitions of the disasters, the disaster is the defined as the crisis situations causing the widespread damage which far exceed our the ability to recover. डिजास्टर यानी कि जो क्राइसिस होते हैं उस सिचुएशन दैट वो रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी लगानी पड़ती है, उसको डिज़ास्टर्स कहते हैं. नाउ तो बात करते हैं द डिज़ास्टर डायमेंशंस. सो डिज़ास्टर डायमेंशंस विल बी depends on these four parameters. The first one is the descriptions to normal pattern of life. यानी कि अगर डिजास्टर्स आता है तो सबसे पहले जो ह्यूमन्स लाइफ जो नॉर्मल चलती है उसको डिस्ट्रॉय करता है. यूजुअली द सेवरल एंड द मेनी ऑल्सो बी सडन अनएक्सपेक्टेड एंड वाइड स्प्रेड. देन आफ्टर द ह्यूमन इफेक्ट लाइफ यानी कि लॉस ऑफ लाइफ, देन इंजरीज, हार्डशिप्स एंड द एडवर्स इफेक्ट इन द हेल्थ. हमने आगे देखा कि डिफरेंट डिज़ास्टर के वक्त लाइफ भी जाती है, देन इंजरी होती है. अगर धरतीकंप आता है तो लाइफ एंड इंजरी दोनों हो जाती है. देन हार्डशिप हो जाती है, यानी कि अगर सूखा पड़ता है तो
खेती करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ, जैसे कि एपिडेमिक हमने देखा था कि जिसमें बॉडी बढ़ जाती है या ऐसे ही कई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाती है। सो दीज आर द ह्यूमन इफेक्ट लाइफ। देन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द सोशल infrastructure such as the destroy or the damage of the government systems, buildings, communications and the essential services। यानी कि अभी जो मैं बात करूँ कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं द डैमेज टू द गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जो फंडिंग देने के लिए, और वो पर इस बार जैसे कि हमको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत गवर्नमेंट को देन आफ्टर बिल्डिंग कोलैप्स, वी नो दैट अगर धरतीकंप आता है तो बिल्डिंग कोलैप्स इज़ द बिग issues। In the last one is the community need such as the shelter, food, clothing, medical access and the social cares। यानी कि कम्युनिटी यानी कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं उन लोगों को जो बेसिक नीड है जैसे कि फूड है, क्लॉथ है, देन मेडिकल है, एसेस है, तो वो सबको देना। जैसे कि अभी जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे कि फंडिंग कर रहे हैं अपने आप से, अपने खुद के पैसे से वो किट दे रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दीज आर द डिज़ास्टर डायमेंशंस टू बी लर्न्स। देन आफ्टर द डिज़ास्टर अकर इन द वेरिड फॉर्म, यानी कि जो हमने डिज़ास्टर देखा, जो डिज़ास्टर्स हमने देखे उसको किस तरह से बाइफर्केशंस कर सकते हैं। जैसे कि सम आर द प्रिडिक्टेबल एंड इन एडवांस। जैसे कि मैं ऐसा बताऊँ कि सुनामी है तो हमको पता होता है कि जैसे कि हमारे पास नाउ डे टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमको पता चल सकता है कि भाई यहाँ पे सुनामी आ सकता है, तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर द सम आर द एनुअल एंड सीजनल, जैसे कि सर्दी होना, बुखार होना। कई लोगों को सर्दी या बुखार जैसे ही वेदर चेंज होता है यानी कि बारिश होता है तो वो एन्युअली या सीजनल हो सकता है। देन आफ्टर द सम्स आर द सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कि धरतीकंप है अनप्रेडिक्ट और उसके ड्यूरेशंस किस तरह से होते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो डेज होते हैं, यानी कि 1 वीक होता है, 2 वीक्स होता है, या 1 डे होता है, 2 डे होता है। अदरवाइज ए ऑल्सो द वीक्स बहुत टाइम तक यानी कि बहुत वीक तक रहते हैं, 1 वीक या 2 वीक तक भी चल सकता है। जैसे कि धरतीकंप सेकंड्स या मिनट, कहीं बार जैसे कि धरतीकंप 2000 में आया था वो मिनट तक था, और कई बार जैसे जैसे हमने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि छोटे छोटे जो धरतीकंप आते हैं वो कुछ सेकंड के लिए होते हैं, 1 सेकंड या 2 सेकंड, 5 सेकंड के, ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट जनरली द मिनट्स में बहुत इफ़ेक्ट होता है क्योंकि उसमें मिनट्स यानी कि ज़्यादातर धरती कंपन रहता है। सो वो सेकंड और मिनट्स होती है। देन आफ्टर द साइक्लोन्स, साइक्लोन्स जनरली डेज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है यानी कि पूरा ख़त्म नहीं होता है तब तक साइक्लोन को डेज में डिवाइड करता है कि इतने डेज तक उसको हम कंसिडर करेंगे। देन आफ्टर द ड्रफ्ट यानी कि सूखा, जैसे कि बारिश नहीं होती है, ज़्यादातर बारिश नहीं होने की वजह से ड्रग्स प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो मंथ तक होता है। सो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स फॉर दी disasters। Now what is the effect of disaster? So disasters effect, the first one is death। जब जब डिज़ास्टर्स आता है तब तक अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे लोग का डेथ हो जाते हैं। जैसे कि अभी के हम आफ्टर द डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने वो
बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में बताया था कि जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, जिसकी इफ़ेक्ट आज तक वहाँ के लोगों में है, तो डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे कि अपंग बच्चे पैदा होना, या बहुत सारी इफ़ेक्ट होती है। आपके अंदर कोई भी ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपके शरीर में कुछ इफ़ेक्ट रह जाती है, सो डिसेबिलिटी जनरेट होती है। देन आफ्टर इंक्रीज इन द कम्युनिकेबल डिसीज़। अब कम्युनिकेशन डिजीज़ यानी कि जो अभी संक्रमित होते हैं कि एक की वजह से दूसरे को होता है, जैसे कि सर्दी एक को हुई है, उसके बाद जितने भी होंगे उनको भी सर्दी होती है। जैसे कि अभी का जो है कि किसी को कोरोना है, तो वो कोरोना जिसके नज़दीक में होगा तो वो ज़्यादातर बढ़ेगा। देन आफ्टर द फिजिकल लॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि किसी को दिमाग में इफ़ेक्ट होता है या बॉडीज़ पे इफ़ेक्ट होता है। देन आफ्टर द फूड शॉर्टेज, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा था कि कोरोना की वजह से बहुत पे जगह पे फूड शॉर्टेज था, जहाँ पे ऐसे में सिंपली मैं समझाऊँ तो जहाँ पे फूड जनरेट होता है, यानी कि जहाँ पे हम खेत में उगाते हैं, तो उन लोगों को इजीली अवेलेबल होता है। बट जैसे कि सिटीज़ एरियाज़ है, और सिटीज़ में भी ऐसे एरियाज़ कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे शॉर्टेज होने का प्रॉब्लम रहता है। देन आफ्टर द सोशल इकोनॉमिक लॉस, अभी जहाँ जहाँ पे कोरोना है उस कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है। देन आफ्टर द शॉर्टेज ऑफ ड्रग एंड द मेडिकल सप्लाइज, वही प्रॉब्लम के अगर ट्रांसपोर्टेशंस नहीं है तो मेडिकल सप्लाइज पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देन आफ्टर द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, जैसे कि साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन की वजह से एटमॉस्फियरिक इफ़ेक्ट भी डिस्टर्ब होता है। सो दिस आर द इफ़ेक्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स। अगर इस डिज़ास्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो disaster will be have the big issues in the all countries, and okay, so these are the effect of disasters. Now the next topic is, हमने देखा कि पढ़ा कि डिज़ास्टर एंड हज़ार्ड्स। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द disasters and hazards? So hazards is the natural event, while the disaster is the consequence. Hazards mean कि जैसे ही धरती कंप आना, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, साइक्लोन आना, तो वो जो नेचुरली इफ़ेक्ट हो रही है उन सभी को हज़ार्ड्स कहते हैं। और डिज़ास्टर इज़ कोसिक्वेंस, सडनली ऐसी बिग आपत्ति आ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको हम डिज़ास्टर्स कहते हैं। नाउ द हज़ार्ड्स इज़ द प्रिसीव्स द नेचुरल इवेंट विच हज़ार्ड से इतना नुकसान नहीं होता है लाइफ या प्रॉपर्टी पे, बट द डिज़ास्टर से तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द हज़ार्ड्स हैव द पोटेंशियल स्किल्स एंड डिस्ट्रॉयड, बट द डिज़ास्टर हैज सर्टन कॉजेज द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइव्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। Then after the hazards are the natural phenomena. The disasters can be the natural as well as the anthropogenic, यानी कि caused by the humans, यानी कि human made disasters. Then after, when the hazards involve the event of risk, vulnerability and the capability, they can turn into the disasters. यानी कि जो हज़ार्ड्स है वो रिस्क, वेलेबिलिटी एंड द कैपेसिटी पे डिपेंड्स है। जब ये सभी को कंसिडर करें तो वो डिज़ास्टर्स। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द
hazards and disasters. Now the next topic is the stages in disasters management. So disasters management means the disaster management is efforts are greater towards the disaster risk management. डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है कि जनरली जो रिस्क होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड है। जैसे कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंट द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द यूजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटीज़। यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट है द रिस्क मैनेजमेंट के इस सभी जगह पे जहाँ पे कहीं पे डिसीजंस लेना पड़ता है, देन आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग मेंटेन करनी पड़ती है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, देन कैपेसिटीज़ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, the stages and the comping. So this comprise of all the activities including the structures and the non-structural measured to avoid or mitigate the adverse effect of hazards. So इस सभी को मेंटेन करने के लिए हमको उसको रिडक्शंस करना पड़ता है, यानी कि मेजर करना पड़ता है फॉर द अवॉइड एंड द मिटिगेशंस के लिए। So now study with the stages of the disasters. So generally there are the three stages for the disasters. The first one is before the disasters, during the disasters and after the disasters. जैसे कि हमने आगे देखा है कि what to do and after to do. So वही है the before the disasters to reduce the potential for the humans, materials and environmental losses caused by the hazards and to ensure that these losses are minimized when the disaster strike. हमको क्या करना पड़ता है कि डिज़ास्टर स्टार्ट होने से पहले हमको जो इम्यूनिटी है, जो ह्यूमन की इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, देन आफ्टर मटेरियल को, देन आफ्टर एनवायरमेंटल लॉसेस। जैसे कि अंदाजा आ जाता है कि इसकी वजह से हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। देन लॉसेस आर द मिनिमाइज इन द डिजास्टर स्ट्राइक, क्योंकि उसकी वजह से डिजास्टर होगा यानी कि हज़ार्स होगा तब मिनिमम लॉसेस हो गए। जैसे कि पॉल्यूशंस की मैं बात करूँ तो जैसे कि दिल्ली में एक सिंपल थियरी अप्लाई की थी ऑड इवन की। देन आफ्टर कुछ ऐसी जगह पे ऐसा था कि भाई सोशल व्हीकल्स ही यूज़ करें, जैसे कि सोशल ट्रांसपोर्टेशन है, बस है, ट्रेन है, उसका ही यूटिलाइज़ करें। सो इससे इससे जो पॉल्यूशंस कम होगा, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर की विदर इफेक्ट हज़ार्स है वो रिडक्शंस हो सकते हैं। देन आफ्टर व्हाट टू डू इन द ड्यूरिंग द डिजास्टर्स टू इंश्योर दैट द नीड्स एंड द provisions to victim are met to एलिवेट एंड द मिनिमाइजिंग द सफरिंग। यानी कि जब डिज़ास्टर्स होता है तब हमको जो इंसान को या एनिमल्स को इफ़ेक्ट हो रही है उससे सबसे पहले उनको एलिवेट यानी कि उसको रेस्क्यू करो एंड उसकी वजह से उसको ज़्यादा सफरिंग ना करना पड़े, यानी कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, वो हमारा ड्यूरिंग द डिज़ास्टर्स मेन पॉइंट्स होगा। एंड आफ्टर द डिज़ास्टर टू अचीव द रैपिड एंड ड्यूरेबल द रिकवरिंग। सभी जानते हैं कि डिज़ास्टर हो जाने के बाद हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि जो जो नुकसान हुआ है उसको रिकवरी करना। सो दीज थ्री स्टेजेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के डिज़ास्टर से पहले क्या करें, डिज़ास्टर्स। जैसे कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था
तब सभी लोग बोल रहे थे कि गर्म पानी पियो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से सर्वाइव कर गए कि भाई चलो कोरोना आया है और इम्यूनिटी होने की वजह से उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अब ड्यूरिंग द डिजास्टर हम क्या करते हैं, ये सभी के टेस्ट करते हैं। अगर जिन जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको तुरंत यानी कि इमीडिएट वेंटिलेटर पे रखते हैं कि ताकि उनको ज़्यादा सर्वाइव ना करना पड़े। एंड द आफ्टर द डिजास्टर अब क्या हुआ कि भाई चलो पता चल गया कोरोना है, ये है, तो अब उस जो इकोनॉमिकल एंड द फिजिकल्स यानी कि ह्यूमंस को जितना भी अफेक्ट हुआ है उनको किस तरह से रिकवरी करे उस पर। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब कोरोना हुआ था, जब लॉकिंग पीरियड था, तब ज़्यादा लोग मर रहे थे ना। अब कंपेयर टू दिस, क्योंकि हमको पता चल गया कि किस तरह से रिकवरी करना है, तो कंपेयर टू दिस वो रेशियो कम हो गया, जबकि अभी अनलॉक है इसलिए। सो दीज आर दी थ्री स्टेज टू कंपेयर विद द टूडेज सिचुएशंस। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स, ऑलरेडी द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल हमने देख ली थी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। सो एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, the the emergency management activities can be broadly into the five phases that are related by the time and the functions to all type of emergencies and disasters. So these phase with this we can first of all the planning. Here the process of the starting of the disaster cycles, the first step is to planning. So planning means यहाँ पे छो स्टेप नहीं है, यहाँ पे 5 दिए हैं। तो फर्स्ट वन हैज़ the first step is planning. So here the activities necessary to analyze it and the document the possibility of the emergencies or the disaster that potentials to impact of life, property and the environment। यानी कि हमको इस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा कि जिससे एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी एंड लाइफ को ज़्यादातर इफेक्ट ना हो। सो दिस इंक्लूड एसेस द हजार्ड्स, रिस्क मिटिगेशंस एंड द प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड द रिकवरीज। सो इन सभी को प्लानिंग में इस तरह से होता है कि द फर्स्ट स्टेप इज जब हजार्ड होगा तो फर्स्ट वन इज द विच टाइप ऑफ रिस्क, देन आफ्टर द मिटिगेशंस risk, then after the mitigations, then after preparedness and then responsibility and recovery. So these four phases we can discuss now. The first one is, the first step is to mitigations. So activities that actually eliminate and to reduce the probability of the disasters. मिटिगेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मैक्सिमम कम करने का हम ट्राई करते हैं। जैसे कि वो पब्लिक एजुकेशन है, यानी कि जो पढ़े हुए वो लोग, देन आफ्टर अवेयरनेस यानी कि हम सभी को उसके बारे में समझाते हैं कि किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन आफ्टर द हज़ार असेसमेंट जो आगे आएगा आपको, देन आफ्टर द वेनेबिलिटी असेसमेंट एंड द इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और उसके लिए हम प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करें। So it is also include the long term activities designed to reduce the effect of unavailability of the disaster. Yes. So now the next one is the preparedness. Yes. So in the preparedness we can take the decisions for the national emergencies, then after the telecommunications plans, response plans, then training and excessives, then early warning and the standard and opening
ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी कि ये सब हमको करना चाहिए ड्यूरिंग दी प्रोसेस फेज, यानी कि प्रिपेयर्डनेस फेज. So the we can active the necessary to the extent the mitigation measure have need or cannot be prevent the disasters. It means that the preparedness phase, the government, organizing, and the individual development plans to save the life and minimize the disaster management or disaster damage. So the preparedness measure also the seek to enhance the disaster response operating operations and the others, like the complying the state recovery environments, mounting the training excessives, installing early warning the systems, etc. Now the response phases. In this response phases we gave done the communications, then after coordinations and saving the life. So response means हमको सबको इंडिविजुअली कम्युनिकेशंस करना पड़ता है, देन आफ्टर फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि अभी की बात करें कि किसी को बुखार आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको कम्युनिकेट करके उसको रिपोर्ट निकालेंगे. अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको फॉलोअप करते हैं, यानी कि डे टू डे उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड सम टाइम यानी कि 2 या 3 दिन में वापस से उनका टेस्ट करते हैं और देन आफ्टर हम उनकी लाइफ सेव करते हैं. सो सर्च एंड रेस्क्यू द एक्टिविटीज़ फॉलो एंड द emergencies. Then after these activities are designed to provide the emergency assistance for the victims. Now the next and the last stage is recovery phase. So in the recovery phase, restoring the telecommunications, then after improving the lives and the recovery of the other services, यानी कि activities necessary to return all the system to normal life. Then after they include the two stages. The first one is the short term recovery and the second one is the long term recovery. So in the short term recovery means the return the vital life, support the system to minimizing operating stands, and the long term recovery activities may continue for the number of years after the disasters. Their purpose is to return the life to the normals. यानी कि अभी के मैं बात करूँ तो 2 फेज़ होते हैं. एक तो शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज़ के जहाँ पे हम बेसिकली प्रिकॉशन के साथ हमारा काम जो बेसिक लाइफ थी वो स्टार्ट कर देते हैं. और आफ्टर द लॉन्ग टाइम यानी कि अभी हम कोरोना होने के बावजूद हम प्रिकॉशन के साथ हमारा वर्क करते हैं, जो बेसिक नीड्स है वो करते हैं. एंड आफ्टर द लॉन्ग टाइम यानी कि जैसे कि हम एक्सपेक्ट करें कि आफ्टर द कोरोना रसी और कोरोना वैक्सीन आने के बाद यानी कि कितने टाइम पे आएगी वो हमको पता नहीं, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम तक ये जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है. रिकवरी इज़ दी ratio will be long term. So these are the disaster management cycles. Now the next one is, this will be explained here. The preparedness means the measure the enabling the government, organizing communities and the individuals to respond. In the response phase, measure taken implemented the prior and to follow the disaster impact. In the recovery phase, the process by which the community and the nation are assigned in return to their proper level of the functioning. And the mitigation phase, the measure aimed at reducing the impact of the natural and the man-made disasters national communities. So these are the disaster cycles. Now what is the response? So include the actions taken to save the life, prevent and damage to the properties, to preserve the environmental during the emergencies and disasters. So we can take the
इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एक्शन प्लान, यानी कि हमको एक्शन प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले। देन आफ्टर द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डिजास्टर्स एंड द पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स, इमरजेंसीज ऑपरेशंस एंड सर्च एंड रेस्क्यूज। द रिस्पॉन्स फेज इंक्लूड्स द mobilizations of the necessary emergency service and the first responder in the disasters area। so हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि what is the response, हमको क्या करना चाहिए। then after the recovery phase the activities follow the disasters, activities follow the disaster, हमको temporary housing claim process and the grant and the long term medical issues and उनको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आफ्टर द एम ऑफ द रिकवरी फेज इज रिस्टोर द अफेक्ट एरिया टू इट्स द प्रिवेंट स्टेज एंड इंक्लूड द एक्शंस दैट असिस्ट अ कम्युनिटी टू रिटर्न टू द सेंस ऑफ द normalizations and the disasters। so these are the recovery phase। now the disaster preparedness। so disaster preparedness means the disaster preparedness aimed at the minimizing the adverse effect of the hazards through the effective precautions actions, and then after ensure the timely, appropriate and the effective organizing will be made। so first of all we can plans made to save the life and properties, and second one this phase covers the implementations and the operations, early warning system and the capacity of the buildings। so these are the disaster preparedness system। now here you can see that the major disaster in the India in 1980 to 2011, you can see that we can here the earthquake in the 2005, the available in the February 2005, then after in the Gujarat, so earthquake in the Bhuj 2001 जिसके हमको ज़्यादातर अफेक्ट हुआ था, जो एपिक सेंटर भुज था वो। then after the earthquake last in the 1993, then after the floods in July 2005, then after the tsunami the Kerala 2004, and also Sri Lanka and the the 2004 tsunami, super cyclone in the 1919, then again the cyclones West Bengal, then after the Bhopal gas we know that the 1982, and the flood Assam and Bihar 2004। so these are the different major hazards in the India, so in 1980 to 2011। so these are the basic information for the disasters। so now the paradigm shift and the disaster in disaster। so ये क्या है, the shift in thinking in the focus from the relief centric approach to the more proactive, holistic and the integrated approach for the management of the disasters through the improve the disaster। जो हमारा जो disasters है उसको हमारे माइंड में एक अलग तरीके से व्यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिपेयर्डनेस है, देन आफ्टर द प्रिवेंशंस, मिटिगेशंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स is broadly considered as the paradigm shift। so इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़्यादा देखेंगे। so now so some paradigmic shift disaster management authority should know, उसको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि वेदर और नॉट द इमरजेंसी एग्जिट, अगर इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है, या डिक्लेयर करना है कि नहीं है, demographics of the affected populations and the number of people affected, then after the details of emergencies, अगर इमरजेंसीज डिक्लेयर करते हैं तो उसका रीजन्स, कॉजिंग, लोकेशंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर, अगर स्ट्रेंथ और धरतीकंप है या साइक्लोन्स है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो पता होना चाहिए। देन आफ्टर द कंडीशंस ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशंस,
यानी कि मेजोरिटी एंड द मोर्बिलिटी ऑफ द रेट। अगर कहीं पे डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे कितना पॉपुलेशंस है, कहाँ पे कम है, वो उनको पता होना चाहिए। द लोकल रिस्पॉन्स कैपेसिटीज़ एंड द अवेलेबल रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द local capacity, the extent and the type of life saving need and the priorities, and the last one is the likelihood of the additional further problems or needed। उसकी वजह से क्या क्या फर्दर प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में। सो दिस आर दी वन टाइप ऑफ द मैनेज सिस्टम्स ऑफ द डिजास्टर्स। सो टूडेज your assignment questions is first two questions: what is the effect, what is the difference between the disasters and hazards, explain the stage of the disaster management, and the assignment questions is explain in the detail disaster management cycles। You can write the Google Classroom sheet names worksheet 12। If any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number in seeing your screens. Thank you.